یار آپ کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ کیوں بول رہے ہیں؟ اچھا ابھی آپ کی بات ختم نہیں ہوئی؟ نہیں آپ کی لمبی بات ہوتی ہے، میری تو چھوٹی بات ہی ہوگی. 1 منٹ میں میں ختم کر لیتا ہوں بات. میں 1 منٹ سے لمبی بات نہیں کروں گا، بے فکر رہیں آپ. 1 منٹ کے اندر میری بات ختم ہو جائے گی. وہ مجھے بھی 2-4 سیانے بندوں نے مل کے سمجھایا. اس نے کہا طارق چوہان جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے 2028 میں فوت ہونا ہے اور روزہ رسول میں دفن ہونا ہے. تو وہی میں نے آخری ویڈیو میں دکھایا بھی ہے. اور 1-2 اور والے بھی موجود ہیں میرے پاس، جو کہ آئندہ نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو نمبر 4 کے اندر وہ آئیں گے، جس میں جمبا صاحب نے واضح طور پر اور تشریح کر دی ہے. تو روزہ رسول میں وہ دفن ہوں گے حدیث کے مطابق، اور 2028 میں غلبہ آ جائے گا اور اگر مکہ نہ مدینہ میں ہوئے ہیڈ کوارٹر قائم ہوگا. اگر نہ ہوئے تو جی جھوٹے ثابت ہو جائیں تو گے. نہیں، میں تو بھائی اس بحثوں میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. عامر نذیر بھائی، میں نہیں یار یہ تو نہیں تو عامر جو بھائی، یہ مرزا تو کیا صاحب عامر نے بھائی بات یہ یہ کہتے کر ہی باتیں نہیں ہے. کی کرتا ہے تھی یار. وہ میں تو پوری نہیں طارق ہوئی صاحب تو ایک آپ منٹ ان کو دینا. کیوں یار مانتے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا طارق صاحب ایک اہم منٹ کیا آپ کرنا اپنا، ہو گیا طارق کیوں صاحب پکھنڈ کیا کر ہو رہے ہیں؟ گیا؟ بھئی علیم یہی صاحب ایک سوال منٹ آپ رک جانا. مرزا کیا صاحب سے کیوں ہو نہیں گیا؟ کرتے؟ کوئی میں نے کوئی ڈنڈا مار مرزا دیا صاحب کسی نے کو؟ کہا تھا کیوں؟ بچہ ان کیا کو پیدا کیا ہوا، نو مسئلہ ہو مولود گیا؟ پیدا ہو گیا ہے، کیا ہو کیا لمبی عمر گیا؟ والا بچہ پیدا ہو گیا ہے، ابے کیا ہو گیا؟ پسرے موت خاموشی سے میرا پیدا ہو گیا، اختیار چند مہینے بعد کریں مر گیا ان کا پسرے موت. بھی. طارق صاحب ایک اس منٹ وقت گل آپ نے فنش کر چھوڑا لیں کیوں انہوں نہیں نے. مرزا صاحب کریں، کو؟ خاموشی اختیار طارق صاحب کریں. انہوں آج نے تک گل کا فنش قائم کر کی لیں کہ دو. زندہ باد کا دوست ڈھونگ کر بابری رہے ہیں. جماعت سے گزارش ہے، خاموشی اختیار کریں، شور نہ کریں. مرزا طارق صاحب صاحب ایک کا منٹ گل فنش جماعت کر لیں ماننے خاموشی کا دو. آپ اختیار ڈھونگ کیوں کریں. کر رہے ہیں؟ ذرا مرزا خاموشی صاحب کی اختیار تو کریں. پیش گوئیاں اتنی ذرا زیادہ خاموشی اختیار مطلب کریں. محمد جھوٹی کرنے ثابت دیں ہوئی مجھے. ہیں ایک منٹ رک آپ کے جائیں چوہان مطابق، صاحب، ایک منٹ رک جائیں. مخالفین کے رک مطابق. جائیں باب چوہان صاحب رک نماز جاؤ. خاموشی اختیار کر لیں، رک جائیں. کچھ نہیں ہوتا. علیم صاحب وقتوں میں تو دخل ہوتا ہے. یار علیم صاحب مرزا اگر صاحب کی جمبا پہلی صاحب پیش گوئی 2028 میں نہ انہوں فوت ہوئے دی تو غلط یاد ثابت رکھنا ہو گئی. وقتوں میں میرا تو خیال ہے کہ ابھی میری وقتوں میں باری تو چل رہی ہے. اشتہارات کو دخل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. ہو تو ابھی تو گئے نا. میری بات چل رہی ہے میرے خیال میں. ہاں جی جاری رکھیں بات ہے، میرے خیال لیکن میں ابھی تو وقتوں میں میری بات اشتہارات کو چل رہی دخل ہے. ہوتا ہے. اور 2028 میں بار بار گنا. میں ابھی سوال نہیں لے رہا. عامر نذیر بشیر صاحب، آپ کا اول جب سوال پیدا بہت ہوا تھا اچھا ہو مرزا سکتا ہے. صاحب نے کہا وہ نو مولود یار کیا ہو سو گیا؟ میں جو جی شریف انہوں نے گل کیا پوری ہو کر گیا؟ لیں دو. چوہان صاحب گل پیدا پوری ہو کر گیا لیں دو. ہے. علیم صاحب ابھی تو میں آپ کی پہلی بات کا جواب دے رہا ہوں، جس میں وہ ہاں پتہ نہیں ٹھیک. آپ اتنی نے بخلان کا شکار ہو گیا آپ. مجھے بھئی طارق چوہان میں یہی یار مجھے مثال ریپیٹ کرنا آپ پڑے کہہ گا، رہے ہیں جی ریپیٹ جمبا کرنا صاحب نے پڑے گا، کہا ہے وہ فوت ہو طارق صاحب ایک جائیں گے. منٹ گل ریپیٹ کر کرنا لیں دیو پڑے نا. تو گا. بھئی طارق صاحب ایک کیا منٹ رک جاؤ نا. جمبا مرزا صاحب نے یہ باتیں بھائی کی تو وہ پوری یار ہو گئیں. میرے خیال میں انہوں آپ نے کہا ایک منٹ رک کو اجتہادی جاؤ بات غلطی ہے نہیں یار. ہونے میری. دیتے. یہ ایک اچھی چوہان صاحب مینجمنٹ کر نہیں لیں. ہے آپ لوگوں کی. طارق چوہان صاحب میوٹ کرو. ایک منٹ علیم صاحب تساں بھی تو رکتے نہیں ہے نا. طارق صاحب ایک منٹ دیو نا، انہوں نے گل ختم کر لیں دیو، پھر اس تو بعد تساں کرنا گل نا. انشاءاللہ مائک نہیں اوپن کر دے اپنا. لیکن وہ ہاں کہتے رہے نا 1 منٹ دا، تے وہ میرا ہاسا نکل گیا وا، واوا دیر ہو گئی سی، لیکن انہوں نے کر لیں دیو گل. پھر بھی نہیں 1 منٹ تساں لمبی بھی 1 بات منٹ ہوگی کہہ نہیں کے 5 آپ نے. منٹ کر لینا گل. کوئی 1 پریشانی نہیں منٹ ہے. لمبی بات میری نہیں تو ہوگی. میں بھی یہی ذرا میں بھی سنیے یہی گا. علیم صاحب 1 منٹ رک تے جاؤ نا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں طارق صاحب نو، 1 منٹ تسی بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیا کرو، تے 5 منٹ کر لینا گل. کیڑا کوئی روکے گا بندہ؟ کیڑا کوئی ٹائم ویکھ رہا ہے؟ کرو علیم صاحب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب وہ جو بات پہلے والی تھی اس پہ دوست بول پڑے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، جیسے کہ میں نے کوئی چیز اٹھا کے مار دی ہے. کچھ بھی نہیں، باتیں کر رہا ہوں جیسے آپ بول رہے تھے. بار لگاتار لمبی لمبی بات کر رہے تھے، میں تو نہیں بولا بیچ میں. بہرحال وہ ڈاکٹر خالد احمدی نے یہ احسان کیا. اس نے بتایا کہ طارق چوہان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، طارق چوہان صاحب ایک غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ تمہیں گھما رہے ہیں. 2028 میں جمبا صاحب بالکل فوت ہوں گے، اس کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، اور جمبا صاحب نے اس کا اقرار بھی کیا ہوا ہے. میں نے سوچا، میں کہ یار یہ طارق چوہان تو مناسب آدمی ہے، یہ تو اس طرح میرے سے بات نہیں کر سکتے. انہوں نے نہیں مجھے جو میں آپ سے یار کہوں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا یار، یہ کیا ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ کوئی چیز ماری ہے میں نے؟ طارق صاحب نہ کرو اچھی گل. طارق صاحب نہ کرو، پھر میرے تے گل کر دینے. یہ ٹھیک گل نہیں ہے. رک جاؤ تھوڑی دیر. کرو. یہ کی ہوا؟ کسی نے ڈراپ کیتا ہے؟ کسی نے آواز آ ڈراپ رہی کیتا ہے؟ ہے؟ اینج لگا جو کچھ حال آیا کوئی. 1 منٹ رکو، پہلے میں نے دیکھن دیو یہ یکدم کی ہوا ہے. یہ بڑا کچھ ہوگا. ابھی تو خاک سار تو صرف بات ہی کرتا ہے. ولید بھائی پتہ نہیں کیوں لوگوں کو وہ تیر لگتے ہیں. نہیں میں تو کہنا جناب کرسپی گلاں کر دیو تسی. کرسپی یا تساں کل بھی کافی کرسپی گلاں کیتیاں نے. 3 بندے ناک آؤٹ کیتے نے تساں منٹ دے وچ میں ویکھے تھے. جی کہاں ہے ہمارے چوہان صاحب؟ میں 1 منٹ ویکھ لیندے ہو نا. چوہان صاحب دی مینوں لگدا وا عامر بھائی انہاں دی نا میرے خیال چ موبائل دی نا وہ بیٹری ختم ہوئی ہے. جڑا یکدم ڈراپ ہوئے نا آ جاندے نے منٹ دے وچ. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تسی انہی دیر چ عامر بھائی وہ سوال پوچھ لو. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر 2028 دے وچ وہ اتنے نہ دفن ہوئے جتھے دا آکھیا ہے تے پھر وہ جھوٹے ثابت ہون گے. میرے گل بڑی خیال امپورٹنٹ. ہم اس سوال گل کا جواب کا جواب سیکشن بعد اس میں گل کا جواب رکھیں گے. علیم صاحب نہیں دیں گے. ابھی ذرا یہ ہے کہ میری توجہ کسی اور طرف ہے ولید بھائی، ہاں تو وہ میں سوالات ابھی نہیں لے رہا.
अच्छा 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 अच्छा, अभी आप सवालात नहीं ले रहे ठीक हो गया। सवालात का सेशन एंड में 15 अच्छा मिनट आप वैसे देंगे किसी अच्छा वैसे आमिर भाई एक गल है बड़ी इंपॉर्टेंट इन्हां दी अलीम साहब दी, मैं तुहानूं दसां। जी जी ਇਹ ਖੁਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਵੇ ਜੋ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ? ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ 212 ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਫੈਲ ਗਏ ਨੇ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਲੋਅਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲੋਅਰਸ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ 200 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਬੜੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਨੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਦੀਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਲਮਾ ਔਰ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੋਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਲੁਕਮਾਨ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਚੱਲੇ, ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਵਲੀਦ ਭਾਈ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਸੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ 2028 ਚ ਜਾਂ 27 ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੁਮਨੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜਕਾਓ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 3 ਦਫਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਜੋ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਜਾਇਓ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ, MBS ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MBS ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਕਿ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਵੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਥੱਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਬਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆमिर भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिदा ये कहते पे ने कि इजाजी लड़के पर बात करनी है मैंने तारिक चौहान साहब से, तो फिर इजाजी लड़के दियां पेशगोइयां ते मिर्जा साहब ने भी कीतियां ने, फिर उत्ते क्यों नहीं गल होएगी?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਟਵੇ। ਬਹੁਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਪਨ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਬਰੋਡਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਦ ਕਿਹਦੀ ਬਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਸਰੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਦੀ ਬਰੋਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੇ ਸਵਾਲ? ਨਾਦਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰੋਡ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਦਿਓ ਵੀ 7 ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ 135 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਦਿਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं। ਲੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਅਗਸਤ 1887 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੀਆਂ ਮਿर्जा साहब छापया सी कि आज रात को 1:30 बजे वो मौलूद मसूद पैदा हो गया है जिसका मैंने जिक्र किया था पिछले इश्तिहारों में। तो वो क्या बना उस लड़के का? आप ये सच में जानना चाहते हैं? हाँ, वो एजाजी लड़का जो 7 अगस्त 1887 को पैदा हुआ था। आपको ये पता है ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ जी, खुशखबरी इश्तिहार है, अभी खोलें 7 अगस्त 1887 का इश्तिहार। क्या आपने पूरा इश्तिहार खुद पढ़ा है? सारा पढ़ा, लफ्ज बलफ्ज पढ़ा। आपको जब वो इश्तिहार पढ़ के समझ नहीं आई तो मैं वो क्या समझाऊं? आपके दिल पे माशाल्लाह ये जो अच्छा प्लीज ये इन बातों के लिए भाई आप जाएं, करें बात। आप ब्रॉड्स लगी हुई हैं और वो आपको जवाब रोज मिलते हैं। लें जवाब। लुकमान साहब आप रोशनी डाल देंगे 7 अगस्त 1887 को जो खुशखबरी वाला इश्तिहार छापा था मिर्जा साहब ने और कहा था आज रात 1:30 बजे वो मौलूद मसूद पैदा हो गया है, उसका क्या बना उस बच्चे का, एजाजी लड़के का? आमिर नज़ीर साहब, अल्लाह ताला ने कमोबेश 1,24,000 या को जो सबसे बड़ा निशान दिया जाता है वो दुआ की कबूलियत का निशान दिया जाता है, और जो निशान मिर्ज़ा साहब को दिया भी गया है उनकी दुआओं में अल्लाह ने कबूलियत रखी भी है। और आज तक जो सबसे बड़ा निशान तो उनकी जमात है ना जो उन्होंने कायम की, इससे बढ़कर कौन सा आप निशान मांगते हैं? सब निशानों को छोड़ें, मेरे सवाल जो सबसे बड़ा निशान है वो जमात है कि मेरी जमात कायम की। हाँ जी ठीक है। ये मेरे सवाल का जवाब। और फिर खिलाफत को कायम किया, इससे बड़ा और क्या निशान है? फिर फरमाया कि मेरी बात, मैं वही जवाब आपको देखें, बाज़ दफ़ा सवाल को भी सीधा करना पड़ता है ना, सवाल करने वाले को भी समझाना पड़ता है। मसलन एक शख्स एक बुजुर्ग के पास गया और कहा और पूछा कि मैं ऊँट ज़िबा करने का क्या तरीका है, ऊँट की कुर्बानी करने का क्या तरीका है। वो बहसें करनी शुरू कर दी तो उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि तूने ऊँट ज़िबा करना है? कहता नहीं। पूछा कि आइंदा कभी प्रोग्राम है ज़िबा करने का? कहता नहीं। कहते कभी ज़िंदगी में करना है, किया है पहले? कहता नहीं। कहते आइंदा ज़िंदगी में कभी करना है? कहता नहीं। तो उन्होंने छड़ी मारी उसको कि तुम पूछो तो पूछो नमाज के मसाइल, कुरान के मसाइल, हज के मसाइल पूछो, तुम वो काम पूछ रहे हो जो तुमने करना ही नहीं। सो बाज़ दफ़ा हमने सवाल को भी दुरुस्त करना होता है कि सवाल करने वाला किस नौइयत का है और क्या वो सवाल बनता भी है। आप वो सवाल क्यों नहीं करते जो आपकी ज़िंदगी में पूरे हुए हैं? मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा साहब ने जो जमात कायम की है, फिर खिलाफत को कायम किया है, खिलाफत चल रही है और उन्होंने फरमाया कि मेरी तबलीग ज़मीन के किनारों तक पहुँचेगी।
आप देख लें, आप किस किनारे पे बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान पैदा हुए हैं, आप इधर बैठे हुए हैं यूरोप में, यहाँ तक आपके इर्द गिर्द जमात है। कोई कनाडा बैठा हुआ है, वहाँ पर जमात है। कोई अफ्रीका के जंगलों में है, वहाँ पर जमात है। बहुत मिर्जा जबरदस्त। साहब, हाँ, जमात तो बहुत है ये तो। हाँ, तो फिर जब नहीं, एक लेकिन- चीज, एक पेशेंट को इतनी बड़ी लेकिन पूरी ये हो जो है गई है, ना- आप उसको छोड़ के वो 7 अगस्त, वो तो कैलेंडर भी मेरे घर नहीं पड़ा हुआ, मुझे लगता है गूगल से कैलेंडर डाउनलोड करना पड़ना है। मसला ये है साई साहब, अब थोड़ा सा कोशिश करें कि भाई अगले को भी मौका मिल जाए बात करने का। मसला ये है कि ये जो खिलाफत शलाफत आप कह रहे हैं ना, ये तो मिर्ज़ा साहब ने कायम ही नहीं किया है। ये तो आपके खलीफा ने बाद में कहा है कि ये पोप की तर्ज पर बगैर धुएं के एक खिलाफत नाम का ढोंग रचा लिया। इसका तो कोई उसके मिर्ज़ा साहब के साथ तो लेना देना। मिर्ज़ा साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं खिलाफत कायम करके जा रहा हूँ, मेरे बाद ये खलीफा होंगे। वो तो बात ही गलत है। हमने तो ये देखना है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद एक मायार मुकर्रर किया है और बताया है कि मेरे सिदक और किज़ब को जांचने के लिए पेश गोई से बढ़कर कोई मुहिक इम्तिहान नहीं। अब पेश गोई रखी है जाजी लड़के के सामने कि 7 अगस्त 1887 की रात 1:30 बजे वो मौलूद मसूद, वो एजाजी लड़का पैदा हुआ। तो उसके बारे में आप कहते हैं मेरे घर में तो कैलेंडर ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है, 7 अगस्त 1887 को मैं था ही नहीं। तो आप तो मिर्ज़ा साहब के फौत होने के वक्त भी नहीं थे, उनकी ज़िंदगी में भी नहीं थे, तो आपने मिर्ज़ा साहब को क्यों माना है? बाकी सारी बातें मिर्ज़ा साहब की आपने कौन सा कैलेंडर देखकर मानी है, कौन सी किताब पढ़ के मानी है? वहाँ जाकर देखें, 7 अगस्त 1887 का जिक्र नहीं है, मौलूद मसूद का रात 1:30 बजे पैदा होने का जिक्र नहीं है। अगर वो मौजूद है तो फिर ये भी गौर तलब बात है, इसको चेक करें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मिर्ज़ा साहब ने पेशन गोई की थी कि मुस्लिम मौत की हैं, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वो पैदा हो गए थे फिर या नहीं थे? क्या यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या वो 7 अगस्त 1887 को एजाजी लड़का पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था? एजाजी लड़का पैदा हो गया, 52 साल उसने खिलाफत को कायम किया और जमात नहीं, 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 बुझा तो नहीं, दिया। और ना, आपको ना, क्या ना, चाहिए? ना, हाँ? ना 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 ना, वो ना, जो ना, क्या है? 7 अगस्त, मैं बताता हूँ, अच्छा, 7 जो अगस्त 7 अगस्त को पैदा होना था, वो अगर 14 बैठ अगस्त तो को पैदा होता तो फिर यौम आज़ादी हो जानी थी ना, पाकिस्तान बन जाना था। 7 अगस्त 1887 को जो लड़का पैदा हुआ, ना उसने खिलाफत कायम की, ना वो 50 साल 52 साल जिंदा वो रहा। जो था वो वो लन तो- करके दिखा दिया। वो वो 52 तो साल 16 महीने जिंदा रहा, वो तो 16 महीने बाद वो मर गया। आप वो कह रहे नहीं हैं था ना, वो नहीं था खिलाफत ना। कायम। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, वो नहीं ऐसा था। हो जो सकता है कि जाजी लड़के की पेशगोई की जाए हाँ, और तो वो- इश्तिहार भी छाप दिए जाएं कि ये हो गया पैदा, लेकिन वो हाँ। ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर जंबा साहब ने इस तरह की कोई बात कर दी है किसी जाजी लड़के के बारे में और वो उस तरह से नहीं है जिस तरह उन्होंने बयान किया है, तो क्या जंबा साहब जंबा पर कोई साहब हरफ की लगाया वैसे जा- मिसेज हैं उनकी, जंबा साहब की? नहीं, मुझे नहीं पता उनके तो मिसेज पता करें ना, उनकी मिसेज भी हैं और वो किस एज की हैं, क्या वो इस उम्र में बच्चा पैदा कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, सारा ये जाजी लड़का उनके अपने यहाँ नहीं होने वाला था, अच्छा, मैंने कहा शायद अपने घर पैदा होना है। वो तो किसी और का था। लेकिन जाजी लड़का एक मिर्जा साहब का भी आपने बताया कि वो मिर्जा साहब को गलती लग गई थी। अगर नहीं, मिर्जा साहब वो- को लग सकती है तो जंबा साहब को भी लग सकती है कि नहीं, ये बता। लग सकती है। जम्मा साहब खुद वो एक बहुत बड़ी गलती पे कायम हैं और बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं और आइंदा यही कर बात रहे हैं। अगर मिर्जा साहब के बारे में कही जाए कि मिर्जा साहब बहुत बड़ी गलती पर कायम थे और गलती पर ही फौत हो गए, तो आपको कैसा लगेगा? मुझे बिल्कुल गलत लगेगा, क्योंकि ऐसा है नहीं है। अच्छा, अगर यही बात अगर उनको गलत लगे चौहान साहब को, तो फिर हाँ, तो वो देखना ना, वो अगर एक टहनी अगर शजर से अलग होती है, वो शजर उस टहनी से अलग नहीं हुआ, हाँ, बल्कि वो ये भी टहनी शजर जो है से ना, अलग। ये भी मुस्लिम उम्मत से लैदा हुई है ना, टूट के लैदा हो कौन गई सी है। है? मुस्लिम उम्मत ये को तो इकट्ठा किया है दो बंदे, मेरे खुद जो बड़े थे वो। कहाँ इकट्ठा किया आपने, कहाँ इकट्ठा किया? मैं आपके सामने अपने बैठा हूँ। अपने कितने टोटे हुए हैं आपके? मैं आपके सामने बैठा हुआ ओ हूँ। भाई, मेरे ना जो कुछ बड़े बोल थे, ना, लुकमान मेरे भाई जो साहब, ना दादा गलत जान थे, वो छोड़ें। मेरे दादा जान सुन्नी थे, उन्होंने कादियान ना जाके गलत बैठ बयानी की। करें, ना गलत मैं आपके सामने बैठा हुआ तो हूँ, भाई, मैं बैठा हूँ आपके सामने, ना जिंदा गलत मिसाल। बयानी करें, छोड़ दें इन मेरे बातों को। मेरी बात सुने आपने ना। टहनी का कहा कि भाई टहनी टूट के लैदा हुई है, मैं कहता हूँ मिर्जा हाँ, साहब वाली टहनी टूट के लैदा हो गई है। नहीं टूट के लग नहीं हुई, बल्कि इकट्ठी लैदा हो हुई गई है। है, उम्मत से लैदा हो नहीं गई नहीं, है। वो इकट्ठी हुई है। उम्मत के इकट्ठी हुई है। किस हिस्से में आपको उस दरख्त की टहनी माना जाता है? मुझे उम्मत तो खुद बिखरी हुई है, 72 फिरकों में पड़ी हुई चलो, थी, तो तो ऐसे ही उनको तो आपके इकट्ठा टोटे किया है। टोटे हुए हैं, तो आप चौहान साहब को इकट्ठे- ताने दे रहे हैं। ऐसे तो नहीं, आपका उम्मत को- लोधी गिरोह, बात तो सुना ना, सुल्तानी बात गिरोह, इतने गिरोह बने, आप चौहान साहब को क्या दावे? इन ग्रोहों की कोई नहीं, कोई हैसियत नहीं होती है। पहले भी इस तरह का काम आपकी बाकी कौन सी किया हैसियत है? ऐसे ही आपकी भी कोई हैसियत नहीं है।
मुस्लिम वो तो उम्मत आप के सामने कहते हैं कोई हैसियत नहीं आपकी। वो तो आप कहते हैं ना। यही मेरे बात मैं आपको कहता हूँ कि मेरे ये जो तो आप दादा जान थे ना, बात तो सुन लेना, मेरे दादा जान सुन्नी मसलक से थे, उन्होंने कादियान भाई ये जाके कहानियां ना सुनाए ना बैत लुकमान साहिब साहब, ये कहानियां हम आपकी नहीं मानते भाई। क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, हम आप पर इतबार नहीं ना करते, हम समझते हैं और कहाँ से फिर मैं तो पैदाइशी अहमदी हूँ, मेरे वालिद साहब भी पैदाइशी आप हैं। पता नहीं पैदाइशी भी हैं या नहीं है, मेरे इससे क्या दादा लेना जान ने देना जाके बैत की है? हम थी। ये कह रहे हैं कि वो कौन सा इतराज है जो आपका जंबा साहब पर पड़ता है लेकिन मिर्जा साहब पर नहीं पड़ता, वो बता दें। जंबा साहब पे ये इतराज़ पड़ता है कि जंबा साहब ने हज़रत मसीह मौला अलैहि सलाम की नाफरमानी की है। नाफरमानी करके उनकी खिलाफत की अतात करने की बजाय, देखें ये जो फर्दी ज़्यादतियाँ होती है ना, जो तारक चौहान साहब कह रहे थे जी, वो कांडी शाह तो पता नहीं क्या नाम ले रहे थे, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ कौन से। ये फर्दी ज़्यादतियाँ हर बंदे के साथ हुई होती है। मेरे साथ भी जमात में फर्दी ज़्यादतियाँ अहदेदारों के हाथों हुई हैं, मैंने भी बड़े नुकसान हुए हैं। मेरे भी लाखों में इन्होंने गलत फैसले करके नुकसान किए हैं, और फ्रॉड के केसेस में मुझे कुछ नहीं मिला, फिर वापस नहीं कुछ भी मिला। तो ठीक है, मेरी भी सादगी कि मैं काबू आ गया। तो बहरहाल मेरा भी माली नुकसान बहुत बड़ा हुआ। तो ये है कि एक दफ़ा नहीं 2-4 दफ़ा हुआ, लेकिन अगर अगला बंदा शातिर होता है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा फरमाया था कि अगर तुम अपनी चर्ब ज़बानी की वजह से मुझसे कोई गलत फैसला करवा लेते हो तो याद रखो कि तुम आग में गिराए जाओगे, आग खा रहे जो हो बात जहन्नम। पूछी जा रही है उसका जवाब है आपके पास। तो जंबा हाँ साहब जी, पर वही कौन सा इतराज पड़ता है जो मिर्जा साहब पर नहीं पड़ता? मैं वही तो ये कह रहा हूँ सवाल कि था, पता नहीं कहाँ सबसे घूम बड़ा, रहे हैं। हाँ वही मैं उसी तरफ ही आ रहा था। चलें, वो ये है कि ये जो हैं जंबा साहब, इन्होंने मिर्ज़ा साहब की अतात से निकल कर, उनकी खिलाफत की अतात से निकल कर, और अपना एक अलग फ़िरका कहूँ या क्या कहूँ, वो कायम किया है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा काम अगर कोई रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी करता तो यकीनन हम उस शख्स को गलत कहते हैं। ठीक है, आप सुन लें, यही एतराज़ आपके मिर्ज़ा साहब पर भी पड़ता है कि मिर्ज़ा साहब ने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत से हटकर अपना एक अलग धंधा बना लिया, अपनी नबूवत घड़ ली, मुसलमानों से अलग हो गए और मुखरज मिनल मिल्ला कहलवाए। अब ये बताएं कि इनमें और आप में क्या फ़र्क है? ये इतराज़ मिर्ज़ा साहब पे पड़ता नहीं है ना। मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने इमाम मेहदी बना के भेजा है, मिसले ईसा बना कर भेजा है, उनका एक दावा है, उनकी एक जमात है, उनका एक पूरा एक इलाही रूहानी सिलसिला है। जबकि ये जंबा साहब के साइको प्रॉब्लम है, नफसियाती मसाइल हैं, ज़ाती अना थी इनकी, अनाएँ थी इनकी, वो दर्जात नहीं थे मेरे जमात में जो चाहते थे कि हर कोई इनसे पूछ के चले, तो वो चक्कर नहीं थे चले। फिर वो अपनी अना की खातिर उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया। बस यही सारी बातें मिर्ज़ा साहब पर भी फिट आती हैं। मिर्ज़ा साहब को तो आपके उलमा मानते रहे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। दूसरे को भी बात करने दिया करें, दूसरे को भी बात करने दिया करें। ये ना किया करें कि आप बात कर ली, जब दूसरा बोलने लगा उसको टोक दिया। इनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो मिर्ज़ा साहब पर फिट नहीं आता? मिर्ज़ा साहब साइको प्रॉब्लम थे, मिर्ज़ा साहब चाहते थे अपना ज़ाती काठ ऊंचा करना चाहते थे, मुसलमानों में उनको हैसियत नहीं मिल रही थी तो उन्होंने दावा कर दिया। और इन्होंने जो कहा है वो आप कहते हैं कि उनको खुदा ने बनाया, इनका भी यही दावा है कि मुझे खुदा ने बनाया। कौन सी चीज़ है जो इन पर आप फेंक रहे हैं और वो मिर्ज़ा साहब पर नहीं पड़ रही? एक बात बता दे बस। जी, मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब को तो आपके उलमा कहते रहे हैं बहुत बड़े आलिम दीन हैं। मिर्ज़ा साहब की तो मुखालफत ही उनके दावे के बाद हुई है। जब उन्होंने दावा किया था मुखालफत, किसी ने नहीं कहा। ये कहानियां मिर्ज़ा साहब के बारे में बराहीन अहमदिया में वो लिखा हुआ है कि ओ भाई, बहुत बड़ा आलिम दीन, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, डॉक्टर सरार साहब की, जवेद इकबाल लामा इकबाल साहब के बेटे की वीडियोस पड़ी हुई हैं। हाँ वीडियोस, वो लिंक जो आपके पास और वीडियोस है ना, जवेद गामदी साहब मौजूदा हाजिर इस तरह की वीडियोस में जिंदा हैं भाई, इस तरह की वीडियोस आपके जंबा साहब के बारे में भी मिल जाएंगे। उन्होंने वो जो मिल जाएंगी उनकी भी बड़ी वीडियोस बनी हुई है। क्या फायदा ये वीडियोस वो होता है? मिर्जा साहब का दावा है कि मुझे खुदा ने आपके बनाया। उलमा मानते रहे हैं ना, आपके सुने, उलमा मानते। आपके मिर्जा साहब का दावा है मुझे खुदा ने बनाया, जंबा साहब का दावा है मुझे खुदा ने बनाया। आप कहते हैं जंबा साहब साइको हैं, वो कहते हैं मिर्जा साहब साइको हैं। क्या फर्क है? नहीं, मिर्जा साहब कैसे साइको हैं? मिर्जा साहब ने 84 के करीब किताबें एक लिखी, बंदा इतना बड़ा एक रूहानी निजाम कायम ओ किया। भाई, जो बंदा एक बंदा 3 सफ़ों पर 1000 दफा लफ्ज लानत लिखता है, साइको चले नहीं है वो।
नहीं ये वो कोई साइको सुको नहीं मसला। अच्छा वो सेकंड नहीं है, ठीक है। अबू बकर भाई करें बात, मैं जरा बिजी हूं, पानी में बात। अच्छा साई साहब, हाँ जी। मिर्जा साहब जो है ना वो लिखते हैं कि मेहदी के बारे में जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हजारों मसीह आ सकते हैं, बल्कि 10,000 भी मसीह आ सकते हैं। ये अच्छा। पता है आपको? लगा यार, हवाला लगाया करें, ऐसे 84 किताबें हैं उनकी, अब कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? अब मैं हर वक्त जेब में डाल के ना फिर रहा तक था। हवाला लगाया करें आप, बगैर हवालों के जो जहाँ से पढ़ के आ जाता है वो कहता है अगले को वो पता होनी चाहिए, बात उसी तरह होनी चाहिए, ये कोई जरूरी तो नहीं। अच्छा, इसमें एक हवाला प्रॉब्लम है ना, हवाला लगाएं मैं बताता हूँ आपको। इसमें एक प्रॉब्लम है। कि प्रॉब्लम ये है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि जिसने मेरी किताबें 3 बार नहीं पढ़ी ना, उसके अंदर कुबर पाया जाता है। और अच्छा एक जगह पे आपने, वो लिखते हैं कि उसके अंदर मुनाफिकत पाई जाती है। हाँ जी, तो आपने एक बार भी नहीं पढ़ी मिर्जा साहब की किताबें? पढ़ी सारी तो नहीं पढ़ी हुई है, लेकिन कुछ पढ़ी हुई है। हाँ, लेकिन मिर्जा साहब ने 3 बार का ये अदद वो रखा हुआ उन्होंने है एक कि म्यार 3 बार। मुकर्रर किया है, उन्होंने एक म्यार ही मुकर्रर किया है। इसी तरह तो कुरान करीम के बारे में भी अल्लाह ताला फरमाता है इसकी तिलावत करो, लेकिन क्या आप इतनी दफ़ा, जितनी दफ़ा कुरान करीम पढ़ा जाता है इतनी दफ़ा मिर्ज़ा साहब की किताबें तो ना पढ़ी जाती, लेकिन इसके बावजूद आपको हर आयत ज़बानी नहीं याद होती, हर नहीं, सफ़ा देखिए ज़बानी जो कुरान नहीं पाक याद। है, यानी कि आप ये कहते हैं कि मिर्जा साहब की किताबें और कुरान मजीद ये एक ही चीज है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि बावजूद या इसके कि मुआजना कुरान करीम मुआजना अगर कर रहे हैं, मुआजना कर रहे हैं, तो उसका नतीजा तो ये निकलता है कि आप ये समझते हैं कि कुरान बगैर और ये। सुने अगर आप नतीजे निकालेंगे तो थोड़ी देर तक ये भी नतीजा निकल आएगा कि मैंने मिर्ज़ा साहब को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह कह दिया, अगर आप मेरी बात पूरी नहीं सुनेंगे तो यकीन करें ये अच्छा, नतीजा पूरी निकल आना है। सुनाएं। अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, अबू बकर नतीजा भाई, निकल। अबू बकर भाई, जी हवाले जी। तो चलो इनको नहीं याद, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक इन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला है अभी कि इनके दादा साहब ने जाके बैत की थी मिर्जा साहब की कादियान में। जरा ये तो कंफर्म कर लें कि कब इनके दादा वो फौत हुए, कब पैदा हुए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैंने ये कब कहा है कि मिर्जा साहब पे जाके बात की, मैंने ये नहीं कहा। कादियान जाके आपने कहा है कि उन्होंने बैत की है। कादियान में उस मिर्जा साहब ही रहे के बाद क्या खत्म हो गया था सारा सिलसिला? अच्छा अच्छा, ठीक है, मिर्जा मुझे साहब गलती जब लग गई। वफात आई एम वफात सॉरी। पा गए तो उसके बाद उनके बेटे थे ना वो खलीफा बने थे, तो उनके मेंशन आगे करें बात ना की। साथ, मुझे लगा शायद वो सहाबी की औलाद है आप। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, चलें बात को आगे करते हैं। आप देखें, कुरान मजीद जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, हाँ जी। ठीक है? और मिर्जा साहब ने जो अपनी किताब पे एक शर्त लगाई है ना अहमदियों के लिए, आप लोगों के लिए, वो ये है कि कम अज कम 3 बार, कम अज कम। और अगर आप 3 बार नहीं पढ़ते तो आपके अंदर कब्र पाया जाता है। और एक जगह में लिखते हैं कि मुनाफिकत पाई जाती है, मतलब उसके मुनाफिक होने में उनको शक है, ईमान में शक है। ये बात जो ईमान थी में ना, शक हो तो ज़ाहिर है बंदा मुनाफिक होता है। किबर देखें किबर, अबू बकर भाई, कबर। ये एक उन्होंने, हाँ, किबर किबर भी है, और एक जगह में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि उसके ईमान में शक है। देखें एक दफ़ा एक साहबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने, मुझे वो हदीस शायद आपको ज़्यादा इल्म होगा हदीस का, अगर मैं कोई गलती करूं तो मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। एक साहबी आए थे, मुझे जहाँ तक वाक़या याद है, तो उन्होंने फरमाया था कि अगर मैं नमाज पढ़ूं और बस इतनी ही नमाज पढ़ूं और मैं इतनी ही नेकी करूं तो क्या मैं जन्नत में जा सकता हूं? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हाँ तुम जा सकते हो। हालांकि उसने बहुत थोड़ा मेयार बताया था, लेकिन खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बाज़ सहाबा का मेयार और था। ये हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता, ठीक है? वो अच्छा आम लोगों लुकमान के भाई, लिए और बात होती है, ख्वास के लिए और बात होती है, अच्छा ठीक है? लुकमान भाई, उसमें कहीं ये था कि आपने एक मिर्जा साहब आएंगे या कोई मसीह मौद आएगा उस पर भी ईमान लेके आना, उसकी भी बैत करनी है तो फिर जन्नत में जाओगे, या कोई इमरान मामला भाई होता है? एक मिनट, इमरान नहीं नहीं, भाई वो तो एक मिनट, साहबी की बात हो रही है ना, साहबी। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ ना, वो जो एक सहाबी का आप वाकया सुना रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी, असल सुना में मरज़इयों, सुने सुने, मरज़इयों के अंदर ना यही एक खराबी है कि लें। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। वहां पे ऐसा कोई जिक्र है नहीं जो आप बयान कर रहे हैं। अभी मैं आपको कहूँ ना वो हदीस लगाएं, जिस तरह आपने मुझे कहा ना कि हवाला हवाला, तो मैं आपको कहूँ ना वो हदीस लगाएं, तो उस मैंने तो हदीस पहले में, ही उस बता रवायत दिया है में कि आपको मुझे ये चीज अब मिलेगी नहीं।
मैंने तो ये तो पहले ही बता दिया था कि मुझे वो याद नहीं है कि कहाँ पे है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। नहीं नहीं, आपको याद नहीं, वो मैं लगा दूंगा, लेकिन उस हाँ रिवायत जी, में लगाएं ये लगाएं। वाली बात मिलेगी नहीं। आपने पता क्या वो किया है, सहाबी आपने वाला बात, सुने 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 सहाबी वाली सुने हदीस सुने लगाएं जरा। आपने बात ही उल्टी की है ना, चले सीधा कर वहां पे दें, जिक्र ही नहीं है। सीधा कर दें। वो जो सहाबी सीधा वाला मैं किस वाक़या लिए है ना, करूं भाई, वो जो सहाबी मैं वाला किस लिए वाक़या है सीधा ना, करूं, मैं तो आपका सीधा करूंगा, आपकी मर्जियत, आपके मिर्जा साहब की नहीं वो किताबें सीधा साहब करूंगा। देखें, आप क्योंकि बिल्कुल हम ठीक कह ये रहे हैं। समझते हैं, सुने ना, हम ये समझते हैं कि आपका कुरान और हदीस से कोई वास्ता नहीं है, और वास्ता हदीस के नहीं, ऊपर आप भुगतान बांधते हैं, झूठ बांधते हैं, जिस तरह अभी आपने बांधा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम हाँ, कहते हैं कि आप हमारी इलाह करें, हमें मर्जियत से दोबारा ये निकालें ले फिर हमारी। इस्लाह, ये ले फिर इस्लाह ले लें। मेरी ये बात पूरी रूहानी कर खज़ाइन लें, जिल्द 3 है, रूहानी खज़ाइन मेरी जिल्द बात 3 है। पूरी सुन लेने दें। सुन जो लेना, हमारी मैं अभी आपकी इस्लाह करने लगूँ, इस्लाह करने लगूँ। जो 2-3 नस्लें हमारी गुमराह हो गई हैं, मेरे दादा जान से लेकर अब तक मैं, हाँ, अभी करने तो लगो, हमें अब दोबारा जो है ना ये हदायत की अभी तरफ अभी लेकर करने आए। लगो, अभी करने लगो। तो ये वो रूहानी जरा खज़ाइन हदीस जिल्द 3, बताएं, वो जरा हदीस बताएं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3, सफ़ा है इसका 251। इस हाँ जी, क्या? आजिज की तरफ से भी ये दावा नहीं है कि मसीहियत का मेरे वजूद पर ही खात्मा है और आइंदा कोई मसीह नहीं आएगा, बल्कि मैं तो मानता हूं और बार बार कहता हूं कि एक क्या 10,000 से भी ज्यादा मसीह आ सकता है, और मुमकिन है कि जाहिरी जलालो इकबाल के साथ भी आवे, और मुमकिन है कि अव्वल वो दमिश्क में ही नाजल हो। जी हाँ ठीक है मिर्जा साहब ने कि अल्लाह ताला किसी का हाँ, पाबंद नहीं है, हजारों मसीह भेज सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी अच्छा, बात? यहाँ पे आप देखें ना, 10,000 मसीह भी आ सकते हैं। 10,000 तो जो अगर जुम्बा लफ्ज है साहब, ना, 10 वो हाँ, वो हाँ, जो लफ्ज होता है ना 10,000, या जब हम कहते हैं मैंने तुम्हें 70,000 दफा कहा है, तो वो एक हाँ, हाँ। तकरार होता है, मतलब चलो होती है 3 कि आ सकते हैं कसरत यार, 2 आ सकते हैं, कसरत मैं कहता कसरत हूँ। होती है, यानी कि बहुत ज्यादा चले, आएंगे, मैं बहुत ज्यादा कसरत भी नहीं कहता, मैं कसरत भी कसरत नहीं कहता, मैं कहता हूँ किल्लत है। 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, नहीं 4 आ सकते हैं। कसरत है इसमें, 10,000 लफ्ज कसरत, 2-3 कसरत नहीं होती, कसरत चले होती है ठीक है, बहुत ज्यादा आएंगे। अब मुराद बात ये फिर, है, अब मुराद ये आपकी है, उस बात की तरफ आ जाते हैं जो आ पहली बात सकते है ना। हैं, आ सकते अच्छा, हैं, इसमें बहुत अब आपकी पहली बात पे आ जाते हैं कि जो है ना जुम्बा साहब, उनका भी दावा यही है कि वो मसीह है। वो गलत दावा है, ये देख लीजिएगा। नहीं, मिर्जा साहब का क्यों सही है? नहीं मिर्जा साहब, देखिए मिर्जा साहब को आप जंबा साहब के साथ किधर मिलान, जंबा साहब के साइको प्रॉब्लम भाई है, मैं कहता हूँ आप जुम्बा साहब के साथ मिर्जा साहब को क्यों मिला रहे हैं? उनके नफ्सियाती मसाइल है, छोड़ दें आप। भाई वो मैं भी वही कह रहा हूँ कि वो मिर्जा जो साहब के भी काजम नफ्सियाती था, मसाइल हैं। अब मैं वो आपको जो बताता हूँ, देखें, वो एक नफ्सियाती कज़ाब था चंद जिसने नफ्सियाती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत का दावा कर दिया था, तो इस तरह के लोग तो पैदा होते रहते हैं। अच्छा, आप सुने ना, मैं आपको बताता हूँ। मिर्जा साहब जो है ना, वो जो उनको शुगर की बीमारी थी, वो एक ही जेब में गुड़ भी रख लेते थे, और वो बटवानी कहते हैं हम उसको, रोड़ा जो होता है ना जिसे ये पेशाब वगैरह जो साफ करते हैं, तहारत करते हैं, वो भी उसी जेब में रख लेते थे। और बाज औकात ऐसा होता था कि गुड़ निकाल के उसे वो तहारत इस्तिंजा कर लेते थे। अब ये अच्छा नफ्सियाती मसला नहीं है? अच्छा, ये जो वो रोड़े रखते थे, वो इस्तंजा करने से पहले रखते थे कि इस्तंजा करके तो फिर भाई बाद वो में तो डालना? वो तो पहले रखते थे या बाद में रखते थे, नहीं वो तो नहीं यहाँ पे बात ही नहीं है ना। नहीं मिर्जा वो साहब के ना, बारे में लिखा हुआ है, सुने सुने, मुझे मसला है ना, हाँ सुने, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरी मैं बताता हूँ। आपकी उनको उल्टी और सीधी जूती का पता नहीं चलता था, मैं म्यूट उल्टी और लगा सीधी के, जूती का पता नहीं चलता था। जो मेरी नुसरत जहां साहब है ना, वो उनके जूते के ऊपर एक फूल भी लगा के देती थी अच्छा निशान के तौर पे, मेरी बात सुने, मैं फिर म्यूट भी वो लगाता उल्टी हूँ, सीधी आप का पता बोली नहीं जाए, चलता जब था। आप इजाजत देंगे तब मैं अनम्यूट करूंगा, आप बोलते रहे, मैं जब आप इजाजत देंगे अच्छा तब। अच्छा, चले, मैंने 2 नफ्सियाती मसले आपको बता दिए, अब आप बताएं, ये नफ्सियाती मसला नहीं है? अच्छा अब मैं आ जाता हूँ, अब आपने खुद कहा है, पहले तो मुझे आपने ये बताना है, वो जो गुड़ वाली टेमे डालते थे, वो क्या इस्तेमाल करने से पहले डालते थे या इस्तेमाल करने के बाद दोबारा फिर वो गंदगी से भरी हुई फिर दोबारा जेब में डाल लेते थे? एक तो ये पता करना पड़ेगा। दूसरा, हमें उस दौर में जाना पड़ेगा, हम आजकल जिस दौर में रह रहे हैं, हमारे पास तो आजकल ऐसे बाथरूम आ चुके हुए हैं जो रिमोट सिस्टम पे हैं, इलेक्ट्रिक सिस्टम पे हैं। मलिक साहब अपना म्यूट कर लें, शोर आ रहा है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक सिस्टम आ चुका हुआ है, फ्लश का ऑटोमेटिक सिस्टम आ चुका हुआ है। हमें अब उस दौर में जाना होगा और हमें देखना होगा कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे उस दौर में क्या करते थे। कहीं हमारी दादियाँ, परदादियाँ, लगड़ दादियाँ जो थीं, क्या वो रात को लोटा लेके खेतों में तो नहीं थी जाया करती, या उस वक्त जो लोग थे वो पत्थर से तो नहीं थे इस्तंजा किया करते? अगर तो सारे लोग इसी रवायत पे थे,
تو اس طرح تو ہم جب حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں گے نا تو ہمیں تو پھر وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ وہ تو پتھر باندھتے تھے، پتے باندھتے تھے، وہ تو لکڑیاں باندھتے تھے، پھر تو یہ مذاق ان کا بھی بنے گا۔ اچھا سعید تو صاحب، سعید صاحب، بس ہو گیا نا، بس ہو گیا۔ اب دیکھیں میں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہی نہیں ہے نا کہ وہ ہاں روڑے کے ساتھ استنجا کیوں کرتے تھے، یہ میں نے بات اٹھائی ہے، نہیں تو آپ بتا نہیں تو وہ جو روڑے جب آپ کے یہ بات اٹھائی ہے میں نے۔ میں بتا جب آپ کے میں تو باپ یہ داد وہ کہہ رہا روڑے لے ہوں، کے میں یہ کہہ رہا کھیتوں میں ہوں، میں جاتے تھے، یہ کہہ وہ رہا ہوں چھپا کہ کے ان کو جاتے تھے۔ روڑے میری بات میں سنا، میں نے خود اب یار آپ سن بھی لیا کریں نا، میری اب بات آپ ختم دیکھیں آپ نے ہوگی مجھے کہا، میں نے بالکل خاموش ہو کے آپ کی بات سنی ہے۔ نہیں آپ میری بات مکمل نہیں اچھا میں آپ سنوگے۔ کا مائک بند کرتا ہوں، پہلے میں اپنی بات بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں نے دیکھیں یہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ روڑے کے ساتھ استنجا کیوں کرتے تھے، اب آپ بات ہی کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرا یہ اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ نفسیاتی مسئلہ، میں نے کہا کہ مرزا صاحب روڑا اور گڑ یہ دونوں ہی جیب میں رکھ لیتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے ایک ہی جیب میں رکھتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ الگ الگ جیب میں رکھتے ہوں، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، الگ الگ رکھیں یا ایک ہی جیب میں رکھیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ روڑا جو ہے نا اس کو چاٹ لیا کرتے تھے، اور گڑ جو ہے اس سے استنجا کر لیا کرتے تھے، یہ ہے وہ مسئلہ۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ روڑا کیوں رکھا تھا انہوں نے جیب میں، یا روڑے سے استنجا کیوں کرتے تھے۔ وہ جو ہے دور ایسا تھا، وہ الیکٹرانک دور نہیں تھا، اور اس طرح کا یہ تو میرا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ میں نے یہ بیان کیا ہے کہ روڑا اور گڑ یہ دونوں ویسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی جیب میں رکھا ہوتا تھا انہوں نے، اور بعض اوقات جو روڑا ہے جس سے استنجا کیا کرتے تھے وہ چاٹ لیتے تھے وہ، اور گڑ جو ہے اس سے وہ پیشاب صاف کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہے مسئلہ جی، اب کھولیں مائک۔ اچھا پہلے تو آپ بات یہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا کہ میری بات ختم ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی یا مکمل ہوئی ہے، کہیں فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اچھا جب آپ کے اباؤ فیصلہ آپ نے اب صبح تک بولتے تو نہیں نہ رہنا۔ تو پھر آپ ابھی تو ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا میرے بھائی، آپ پھر بیچ میں بول پڑے ہیں۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس وقت جب لوگ کھیتوں میں جایا کرتے تھے استنجا کرنے کے لیے، خصوصاً عورتیں یا مرد جو بھی تھے، تو کیا وہ سب کو ہاتھ میں پتھر وٹے دکھا کے لے کے جایا کرتے تھے، ویکھو میں استنجا کرنے جا رہا ہوں، یا اس وقت عورتیں دوپٹہ اوپر رکھ کے اس دوپٹے میں چھپا کر لے کے جایا کرتی تھی؟ اسی طرح مردوں کا بھی کوئی ہوگا انتظام، وہ یہ تو نہیں نا وٹے پکڑے ہوئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں جی یہ استنجا کرنے جا رہا ہے، تو یقیناً وہ چھپا کے لے کے جاتے ہوں گے، سائڈ پہ لے کے جاتے ہوں گے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے غیر احمدی، اب آپ نے بڑے حوصلے سے بات سننی ہے میں جو کرنے لگا ہوں، میں نے یار اس لیے میری بتایا بات کہ سنو نا، میری بات نہیں وہ میری بات استنجا کا میں جواب نہیں بتاتا آیا، ہوں، میں میری بتاتا بات ہوں، کا جواب نہیں آیا، میری بات کا جواب نہیں آیا، آپ جواب نہیں آیا۔ کریں گے تو جواب نہیں آئے آپ گا، نے جواب آپ مجھے دیکھیں، میری جھوٹ نہ بات کریں، سنیں، میں آپ کو آپ کے گھر نہیں سے آپ حوالہ نے کرے بات گا، کا جواب دینا ہے، بات میں کا جواب آپ کو دینا آپ کے گھر ہے، سے حوالہ بات کا کرے گا ہوں۔ جواب دینا ہے آپ آپ نے۔ ایک ٹیچر غیر احمدی ٹیچر تھا ہمارے اسکول کا، اس نے کہا ہمیں اسمبلی میں یہ بات کہی، آپ کے تھے مسلمان، وہ کہتے کہ قرآن کریم کے مطابق زمین و آسمان کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، جب آپ نے استنجا کرنا ہے نا پتھر کے ساتھ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے، تو آپ نے نا اس کو 3 دفعہ کسی چیز کے ساتھ ٹکرانا ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے میرے ساتھ استنجا ہونے لگا ہے، تو لہٰذا میں اللہ کا ذکر چھوڑ دوں۔ آپ کے تو اس طرح کی باتیں ہیں، تو آپ گڑ شکڑ سے باہر نکلیں۔ آپ کے ٹیچر نے مجھے بتایا تھا اسکول میں ہمیں اس طرح کی بات، تو اس طرح اچھا کی آپ باتیں ٹھیک ہے، آپ کے بس ذہن ہو جاتی گئی اس طرح کی گندی۔ اور ہو گئی۔ دوسرا یہ جو گوڑ ادھر رکھ لیتے تھے، پتھر رکھ لیتے، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ وہ استنجا کرنے سے پہلے جیب میں رکھتے تھے وہ پتھر، یا استنجا کرنے کے بعد وہ گندگی سے بھرے ہوئے پتھر دوبارہ جیب میں ڈال لیتے تھے گڑ والی جیب میں؟ تو پھر میں سوچوں گا کہ ہاں آپ کو چلے گڑبڑ ٹھیک ہے، ہے، یہ ٹھیک ہے، مجھے آپ بس ہو نے گئی۔ بتانا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، میرا یہ سوال ہی نہیں تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اندر یہ نفسیاتی جو مسئلہ تھا کہ گڑ اور ڈھیلا پتھر یہ وہ ایک ہی جیب میں انہوں نے رکھا ہوتا تھا، اور ان کو پہچان نہیں ہوتی تھی۔ وہ وٹا اب مجھے نہیں پتا وہ گند سے بھرا ہوا وٹا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے گند سے بھرا ہو اور ہو سکتا ہے صاف ہو، کیونکہ اب جس طرح کی حالت تھی مرزا صاحب کی، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہ بھول جاتے ہوں کہ ابھی اسی پتھر سے تو میں نے استنجا کیا ہے، اور وہ واپس جیب میں ڈال لیتے ہوں۔ عین ممکن ہے، کیونکہ جو ان کی حالت ہے نا یہاں پہ جو نظر آ رہی ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتے ہوں کہ ابھی میں نے استنجا کیا ہے اس سے، اور وہ واپس جیب میں ڈال لیتے ہوں، اور پھر بھول کے وہی جو پتھر ہے وہ چاٹ لیتے ہوں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ممکنات میں سے، ایسا نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن یہ ممکنات میں سے ہے، کیسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو یہ جو بھولنے کی یا نفسیاتی جو مسئلہ تھا، اس سے عین ممکن لگتا ہے کہ وہ بعض اوقات گند سے بھرا ہوا بٹا جو ہے وہ بھی چاٹ لیتے ہوں گے۔
तो वो आपने अगर मेरी तवज्जो दिलाई है तो मैं भी यही सोचता हूँ कि यार मुमकिन है ऐसा हो सकता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि मिर्जा साहब के अंदर ये जो मसला था कि वो वट्टा और गुड़ उन दोनों में वो फर्क नहीं कर पाते थे, और वट्टा जो है उसको चाट लेते थे पत्थर को, और गुड़ के साथ इस्तेंजा कर लेते थे। उल्टी और सीधी जूती का उनको पता नहीं चलता था कि उल्टी कौन सी है और सीधी कौन सी है। फिर एक रवायत ये लिखी हुई है कि मिर्जा साहब की पसली में एक बार दर्द हो गई, तो वो 2-3-4 दिन के बाद जाके उनको पता चला कि वो जेब जो है ना उनकी कोट की, उसके अंदर एक ईंट पत्थर वो होना रखा हुआ था, और वो कहीं सोते थे तो वो जनाब उनकी वक्खी में वो चुभता था और उनको पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ईंट पड़ी हुई है जेब में। तो ये उनकी हालत थी। एक और रवायत ऐसी मिलती है कि जनाब रात को वो सोए मेरे ख्याल में मौलवी अब्दुल करीम के घर, तो जूता उनका जो है ना वो कहीं खो गया। उन्होंने भेजा अब्दुल करीम साहब को। तो मीर भाई सिर्फ एक बात ऐड कर लें, मिर्जा साहब जी। को जूती उल्टी सीधी पहनने का भी पता नहीं था, मिराग भी था और दौरे भी पड़ते थे। हाँ जी, ओए, इसको बिल्कुल ऐसे। इसको ना किसी ने बुलाया, ये हमें टपक पड़ता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, आगे सुने। बदतमीजी करेंगे लुकमान साहब, बदतमीजी करेंगे आप तो आपके साथ बड़ा बुरा पेश आऊंगा। ना तुम्हें किसी ने बताया, ना तुम्हें किसी ने अच्छा, नहीं, मैंने तो बताया बात की अबू बकर मीर भाई से। ओ तुम्हें किसी ने बताया, नाम किसका लिया तुमने? अच्छा ठीक है, नहीं मैं भूल गया वो तो बात पे आ था। गए आप। बस मैंने मैं नाम भूल लिया है साहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि मैं भूल गया था, उन्होंने मुझे मैंने याद तुम्हें करवाया कहा था। चले मैं चुप करवा देता हूँ, मैं चुप करवा देता मैं हूँ। अबू बकर ठीक से है, बात कर रहा हूँ, ये बीच में टपक अच्छा पड़ा। ठीक है, आगे आगे चलो, आगे चलो। कवि और कादर नाम में बताओ, जल्दी करो। कवि और कादर नाम अच्छा चले आगे चुप कर जाओ चमोड़े, चल बता। चले जाओ अच्छा। चमोड़ा। इसने मुझे चूड़ा था। मारते हैं जोसेफ भाई, अगर आप कहते हैं इसकी बहन की चोट मारते हैं। नहीं रुक जा इसने मुझे चूड़ा था। गाली नहीं देनी, गाली नहीं देनी। इसने मुझे चूड़ा अच्छा था। आगे आगे, अच्छा आगे चले इसने मुझे अपना चूड़ा क्यों कहा है? लुकमान साहिब साहब आगे सुने। नहीं, आगे इसने मुझे चूड़ा क्यों कहा है? सुने। यार आपने उनको कहा है। मैंने नहीं वैसे कहा, ये- इसने मुझे चूड़ा कहा है। यार ये चमूना अच्छा, का चमूना का है, मैं समझा शायद चूड़ा का है। सॉरी जोसेफ नहीं, भाई, चमूना, सॉरी, मैं चमूना। समझा शायद चूड़ा का है। सॉरी भाई। चमूना का। अच्छा चले अच्छा। ठीक हो गया, चमोड़ा का ठीक हो है, गया। चमोड़ा जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के अच्छा, पछवाड़े के अंदर वो वाले मुझसे चमोड़े हैं गलती आप। हुई है, मैं मैंने चूड़ा चमोड़ा समझ कहा गया। है आपको। मैं आप वो चूड़ा समझ चमोड़े गया। हैं जो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के पछवाड़े के अंदर लगे हैं, वो वाले चमोड़े हैं। मैंने समझा शायद आपने मुझे चूड़ा कहा है। नहीं मुझसे- चमोड़ा चमोड़ा अच्छा चमोड़े अच्छा, हैं मैं आप। माजरत आप चाहता छोटे हूँ, मर्दई मैं चमोड़े हैं समझा शायद आपने मुझे जो चूड़ा मिर्जा कहा है। बशीरुद्दीन महमूद के पछवाड़े के अंदर चूड़ा लगा हुआ तो है मैंने- चमोड़ा, वो है चमोड़े जिनको उन्होंने अच्छा, उंगली से निकाल के फेंक दिया है। वो अच्छा, वाले तो चमोड़े चूड़ा हैं और आप। चमूना आपस में मिलता जुलते लफ्ज हैं, मुझे गलती लगी है। नहीं मैं समझ चमोड़ा शायद चमोड़ा चमोड़ा आपने मुझे चूड़ा कह दिया। चमोड़ा कहा है चमोड़ा हाँ, मैं चूड़ा असल जो सुनते आए मिर्जा हैं पाकिस्तान बशीरुद्दीन से। महमूद के पछवाड़े के अंदर लगा है, वो वो वाला जो चमोड़ा। हम बचपन से सुनते हैं, वो नहीं, ज़हन अबू बकर मीर ऑटोमेटिक भाई चूड़े अभी की तरफ चला भौंकेगा, आप जाता है। बात करें। वो चूड़ा अच्छा की तरफ नहीं, चला गया वो ज़हन ऑटोमेटिक। मैं जोसेफ माजरत भाई चाहता हूँ। जोसेफ भाई पछवाड़ा लफ्ज भी चेंज कर ले, वहां पे लिखा हुआ है मकद, मकद से वो निकले थे। अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे गलती होगी कि मैं चूड़ा समझ गया। अच्छा चले ठीक है। ज्यादातर लफ्ज चूड़ा इस्तेमाल होता है ना पाकिस्तान में, तो मैं नहीं वो वैसे ज़हन उधर चला गया मेरा। मिर्जा साहब ने भी ये लिखा हुआ है, बल्कि अखबार अल फजल के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब जो है चूड़ों के पेशवा थे। ये बात लिखी हुई है। तो तो आप मानते हैं उनको फिर अपना पेशवा? नहीं आप देखें ना, अगर वो चूड़ों के पेशवा थे तो फिर आपको क्या कहा है उन्होंने, आप खुद सोचें। अच्छा, यानी कि मुझे तो आपने चूड़ा नहीं ना कहा। भाई मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन वहां पे अच्छा, लिखा हुआ जो है कि चूड़ों के चूड़े हैं वो पेशवा थे, मानते हैं। और अखबार अल फजल आपका जो है आपका मानते अखबार। हैं। अच्छा, जो चूड़े हैं वो मानते हैं मिर्जा साहब को? भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब चूड़ों के पेशवा थे। अच्छा, ये जो जितने भी आप बातें करते हैं, जितनी भी इस तरह की हरकतें करते हैं, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ये आपके जाती यार मैंने नहीं कहा, आपकी यही मैंने नहीं इखलाकी कहा आदत कि है। ऐसे भी हो सकता है या वैसे भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने ऐसे कहा ही हुआ है। अबू बकर साहब, आपकी बात खत्म नहीं थी होगी वैसे, मेरा ख्याल है। भाईजान नहीं अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी खत्म नहीं हुई साहब बीच में बोल पड़े थे, मेरा नहीं ख्याल खत्म आपकी हुई बात थी। खत्म अभी थी, आगे मेरी मजीद बात। सुने, मजीद सुने, मजीद सुने। मैं अच्छा मिर्जा साहब की एक मिर्जा बात साहब मेरे पास भी है। अब्दुल करीम के घर में एक बार सोए हुए थे, और जब मैं उनकी भी आंख सुनाता खुली हूँ, तो मेरे पास भी एक बात, मिर्जा साहब की सुने, बात सुने, मेरे पास भी है, वो भी इसी तरह की है। सुन तो मैं ले, आपको सुनाता आंख हूँ। उनकी खुली, मिर्जा आंख साहब उनकी की- खुली तो जूता नहीं था, तो उन्होंने मौलवी साहब को बुलाया कि जरा जाओ देख के आओ कि कहीं कुत्ता को उठा के ना लेके आओ जूता। तो वो जनाब मौलवी अब्दुल करीम साहब जो है ना सादे घूम घाम के आ गए, तो जूता नहीं मिला। मिर्जा साहब ने दी अचानक आवाज कि आजो मौलवी साहब वापस आजो, जूता मिल गया। तो उन्होंने कहा कहाँ है जूता। अब ये तवज्जो कीजिएगा कि उन्होंने पहले कहा कि कहीं कुत्ता ना उठा के ले गया हो।
और जब वापस बुलाया तो अच्छा मिर्जा अच्छा साहब ने अच्छा कहा कि वो जूता तो मेरे हाँ पैरों में था, मैं भूल गया था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा ठीक हो गया, सुन एक मिर्जा साहब की अच्छा बात आगे मैं भी सुनाए एक ना, और हाँ आगे मैं भी भी सुनाए। बताता हूँ, मेरे पास भी एक बात है मिर्जा साहब की इसी अच्छा तरह यार की सुनो है। सुनो मिर्जा सुनाओ। साहब की एक बात इसी तरह की मेरे पास भी है। एक आदमी ने उनको गिफ्ट दिया घड़ी का, वो घड़ी होती थी जो पुराने गोल सी, वो हाथों पे आप तो पटे वाली ना हाथ पे, वो उसमें होता था गालबन धागा होता था, ये क्या होता था उसके, वो घड़ी दी। तो मिर्जा साहब ने जब टाइम उसको देख कर ना, मिर्जा साहब को टाइम का नहीं था पता चलता कि टाइम क्या हुआ है। तो फिर वो उसके ऊपर वो डाट डाट वगैरह लगे होते थे, फिर उसको 1 2 3 4 करके ऐसे गिनते थे, तो फिर उनको पता चलता था कि वो वक़्त क्या हुआ है। इतनी सादगी थी मिर्ज़ा साहब की। और वो जिन्होंने ये रवायत की है वो कहते हैं कि जब मैं देखता था ना उनको कि मिर्ज़ा साहब ऐसे गिरते, तो मुझे उनकी ये बात बहुत प्यारी लगती थी। ये भी एक और वाक़या मैंने आपको सुना दिया। अब आपके पास और भी वाक़यात हैं। अच्छा कुत्ता ले गया था, तो आपने मौलवी कहते हैं ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਆਂ, सैयद असद भी आंदा मैं कुत्ता ਵਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ। ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਦਾ ਮਰਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ एक मिनट यार मलक इमरान भाई एक मिनट, मैं इसका जवाब देता हूँ ना। हाँ अच्छा जी जी, अभी आपने जो कुत्ते का भी किया ना, तो उसका मेरे पास से जवाब ले लें कि मिर्जा साहब कहते हैं कि मरज़ई सच्चे खुदा परस्त है ना, सच्चे खुदा परस्त, अब खुदा तो नहीं मैं उन्हें कहता, ये लाश परस्त, जो सच्चे ये लाश परस्त है ना, वो कुत्ती के बच्चे हैं, यानी कि कतूरे हैं। ये मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है, हवाला आप मुझसे मांग लें, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब बताएं अब से जो मिर्जा पहले साहब ने आपने वो दिए नहीं है, एम ही हवाई बातें करी जा रहे हैं। आपके कौन सा अपने नहीं दिया, मौलवियों कौन सा नहीं दिया मैंने, आपके मौलवियों के वीडियो प्रूफ हैं कौन सा हवाला नहीं दिया यार, झूठ ना बोले लुकमान साहिब साहब, झूठ ना बोले। सैयद असद भी आंदा है मैं कुत्ता वां, ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ मैंने ਆਂ। अभी आपको बताया है कि मिर्जा साहब आपने कहते अपने हैं मौलवियों ने कि वो सच्चे मिर्जा जलाल ने कहा हुआ है, कुत्ती के मिर्जा बच्चे हैं, इंजीनियर यानी ने कहा कतूरे। है कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है, तो आप क्यों अपने आप को कुत्ता कहते हैं? अच्छा चले, मैं वो भी हवाला आपको पढ़ के सुना देता हूँ यार, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं अभी निकाल देता हूँ और आप देख लें, वहां पे लिखा हुआ है कुत्ती का बच्चा, ये है जी। कहें तो मैं लगा भी दूं, ये बड़ा करके लगा दूं। कोई गल नहीं बकरीर भाई, लगाओ लगाओ, अब बकरीर भाई अमन मिर्जा साहब जगह कुत्ता, बैठ जाओ, लगा मैं दो। बड़ा करके लगा, मैं बड़ा करके बड़ा करके लगा लगा दो, भी देता छुपाओ, हूँ। बैनर लगवाएं, बैनर। नहीं वो असल में बात फिर ये देखें जनाब, हाँ ये देखें, सच्चे खुदा परस्त बनो, और ये जनाब देख लो, ये किसी ये से क्या पढ़ा लिखा जा हुआ रहा है? वैसे पहले ये बताएं ये क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है। जब कोई बेटा मर जाते हैं, एक आपको उर्दू भी नहीं सही पढ़नी आ रही। एक कतूरा कुत्ती का बच्चा मर गया है, इसको दफन कर दो, ये लेंगे। ये कौन? ये मलफूजात जिल्द 5 है हाँ जी और सफा इसका जनाब 97 है, और ये लिखा हुआ है देख लो, सच्चे खुदा परस्त बनो। और सच्चे खुदा परस्त बनने के लिए, सच्चे खुदा परस्त बनने के लिए जरूरी है कि कुत्ती का बच्चा जो है ना, कतूरा। हाँ, तो ये जो वो बीच बनना में पड़ेगा 15-20 लाइनें हैं, ये किसने पढ़नी थी? वो आप पढ़ लें, मैंने तो जितना पढ़ के आपको सुनाना है, ये देखे ना, ये लिखा हुआ है। कहते हैं वो ऊपर ये देखें। हेडलाइन पढ़ दी है, नीचे जब कोई आखिरी बेटा फैसला मर पढ़ जाता दिया है। है, जब कोई बेटा मर जाता है, तो लोग उसे कहते हैं कि एक कतूरा, यानी कुत्ती का बच्चा मर गया है, इसको दफन कर दो। हाँ जी, तो वो अब ये जो बीच में बाकी बातें हैं, ये किसने पढ़नी है? हाँ अच्छा चले, अब ये बात तो खत्म होगी, अब आगे चलते हैं। आप कहते हैं हवाला नहीं दिखाता, हवाला जो भी आप मांगेंगे, जो भी हवाला मांगेगे आपके मुंह पे दिया जाएगा। अच्छा पढ़ के सुनाएं, अब आगे चलें, आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं। अब मिर्जा साहब ने किसी के ऊपर 1000 बार लानत भेजी। अब उनकी नफ्सियात का ये आलम है कि उन्होंने 6 वर्के भर दिए और कंटिन्यू लिखा हुआ है लानत 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 लानत। ठीक ही है ये नफ्सियाती मसला नहीं है। नहीं, ये कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, ये बिल्कुल ठीक किया है, 1000 दफा लिखनी चाहिए थी। ये तो बल्कि कम है,
इस उधर कंप्यूटर होता ना उस दौर में, तो एक दफा लानत लिख के उसको 1000 दफा कॉपी पेस्ट कर देना था, करोड़ों दफा, बल्कि एक पूरी किताब होनी चाहिए थी, फिर लानत 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 उस पे लिखा हो। ये बिल्कुल ठीक किया मिर्जा साहब ने जो किया। अच्छा एक बार फिर ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मिर्जा साहब कहीं चलते हुए जा रहे थे, तो कई किलोमीटर दूर जाके उनको ये पता चला कि वो ऐसे लंगड़ा के चल रहे थे, एक पैर ऊपर, जैसे वो आपने देखा होगा कि एक टांग छोटी और बड़ी नहीं होती जिसकी, तो वो ऐसे उछल उछल के चल रहा होता है, इस तरह से चल रहे थे कि तो कई मतलब मील दूर जाके उनको ये पता चला कि ओहो तो आपने जूते मेरी बता पीछे देना था, अगर आप उससे पास थे तो आपने बता देना था मिर्जा साहब को कि आप जूता उनके पाँव से वो एक उतर गया हुआ है, तो आपने और बताया क्यों नहीं था उस वक्त? कई किलोमीटर के बाद जाकर पता चला कि एक जूता तो वहीं पीछे रह गया। नहीं तो आपने बताया क्यों नहीं था फिर मिर्जा साहब को? भाई मैंने क्या बताना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये नफसियाती मसला है। जिस तरह आप जुम्बा पे इतराज कर रहे हैं, तो ये इतराज तो आपके अपने जो है आपके कमरुल अंबिया साहब, उन्होंने भी लिखा हुआ है, और आपके मुस्लिम मऊ साहब ने, उन्होंने भी, ये इतराज उनके हैं, मेरे नहीं है, ये याद रहे, ये उन्होंने ये बातें लिखी हुई हैं, खसूसन जो आपके कमरुल अंबिया है ना, सीरतुल मेहदी वाले, उन्होंने ये चीजें लिखी हुई है। जोसेफ भाई आपने कोई बात करनी है? हाँ जी जोसेफ भाई वाला मुझे एक हवाला जी मैं इसलिए आया था, बहरहाल अबू बकर मीर भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी मैं मर्जी चमूने से बात करने नहीं आया। मुझे इसने फिर चूड़ा मैं यही कह रहा था कि रुक जाए जी, इसका माइक म्यूट करें, इसने बहुत देर बात कर ली है। मुझे इसने चूड़ा मैं क्यों यही कहा? कहने आया था कि जो ये अब्दुल गफार जंबा साहब के ऊपर एतराज कर रहे थे और मुंह खोल खोल के बातें कर रहे थे ना, और उसको कज्जाब और दज्जाल कह रहे थे, बहरहाल कह तो ठीक रहे थे, लेकिन अब्दुल गफार जंबा का मयार जो है वो मिर्जा कादियानी से कहीं बेहतर है, वल्ला उसका मयार बहुत बेहतर है। उसकी शक्ल सूरत आप देख लें, उसका रोब रुतबा देख लें, तो वो मिर्जा कादियानी से बहुत बेहतर लगता है। चूड़ा नहीं हूँ, और मिर्जा कादियानी जो है इंतहाई पहले दर्जे का चूड़ा लगता था, इसने मुझे चूड़ा आप यकीन करें। ये जितने एतराज इन्होंने उसके ऊपर की ना कि हवाएं बातें करती हैं, भाई मिर्जा कादियानी के साथ तीजी तीजी बातें करता था, मिर्जा कादियानी के साथ मुर्खों ने बातें की हैं। मिर्जा कादियानी की कौन सी को बड़ी बात है? मिर्जा कादियानी को बंदे का पुत्र था, ये आके बात कर रहे थे अब्दुल गफार जंबा। ओए अब्दुल गफार जंबा तो दूर की बात है, मौदूद ये इंडिया वाला मौदूद जो है वो मिर्जा कादियानी से ज्यादा अच्छा है। मलक साहब आप ये आके बात कर रहे हैं उसके ऊपर अब्दुल गफार जंबा, मिर्जा कादियानी ज्यादा अफजल है। मिर्जा कादियानी के तरफ से अफजल आ गया है। आओ मैं मुनाजरा करता हूँ, मैं साबित करता हूँ कि अब्दुल गफार जंबा जो है वो मिर्जा कादियानी से ज्यादा अफजल है, वो मिर्जा कादियानी से ज्यादा बंदे का पुत्र है। वो मिर्जा कादियानी के अंदर एक बात नहीं थी बंदे के पुत्रों वाली। ऐसे बात करनी है करे, लेकिन चूड़ा ना कहे मुझे बार बार। हाँ जी, चमूड़ा का है, चमूड़ा मिर्जा कादियानी, चमूड़ा मिर्जा कादियानी खुद सुना इसने चूड़ा का है। हाँ जी, कुत्ती के बच्चे हो। मलक साहब इसको मना करें कि ऐसे ना कहे ना, वैसे नहीं मलक साहब उसको कुत्ती का बच्चा ना कहें, वो मिर्जा साहब लिख के चले गए कि मिर्जाई जितने भी हैं वो कुत्ती के बच्चे हैं, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो सामने बैठा हुआ है एक कुत्ती का बच्चा, उसको ना कहें, एक खस्सी को आप ना कहें कुत्ती का बच्चा, वो एक अलग बात है। कि मिर्जा कादियानी ये बात लिख के गया है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे मानने वाले मिर्जा कादियानी जो है वो कहता है कि मेरे सारे मानने, मैं तो चूड़ों का सरदार साई हूँ, साई नहीं हूँ मैं कह रहा हूँ मिर्जा कादियानी तो चूड़ों का सरदार था। आपको पता है मिर्जा कादियानी ने तो तबलीग ही चूड़ों को की थी। लुकमान साई आपके हूँ, जितने बापे थे ना, जितने दादे सब चूड़े थे, वो सब चूड़े थे। आपको पता नहीं है शायद इस बात का। उर्दू में सीन अल्फ सा हये ही बनता है, साही लुकमान साही। मैं साई नहीं हूँ, मुझे चूड़ा मत कहो, मैं जो हूँ वो मानूं। आप तो साई हैं, मैं साई हूँ, जात साई है मेरी, आप क्योंकि मिर्जा कादियानी को कहते हैं ये ईसा है, मुझे चूड़ा मत कहो। आप ही तो मिर्जा कादियानी को ईसा मसीह ईसा कहते हैं, आप ही तो साई हैं। मैं गटर साफ करता ही नहीं हूँ ना, हमारे खानदान में कभी किसी ने गटर साफ किए हैं। अभी कल तो आप लोगों ने गटर साफ किए हैं। मैं साई हूँ, मैं साई नहीं हूँ। कुत्तों की नस्ल है, पता नहीं आपके उधर ये जो करने के ऊपर आ गया मलक इमरान भाई, गाला कट दिया मेरे को गाला नहीं कटियां जानियां, आप पूछ लें वहां ये गालियां निकाल रहा है, इसको आप संभालें। मैं अच्छा मेरी बात सुने साई साहब, बंदा कुर्तूत से जुड़ा भी हो जाता है, बंदा कुर्तूत से चमार भी हो जाता है, ये कुर्तूत होती है। और मेहनत करने वाला है वो तो अलकासिब हबीबुल्लाह बोला गया है भाई।
मुझे आप क्यों उनको कह रहा है? ये हकालत की मुझे क्यों नजर बुरा से कहता है? आप देखते हैं, ये आपके काल्पन अकायद का हिस्सा बन चुका है। नून भाई मैं आपके साथ ही तो बैठता हूँ, आप मैंने इस कभी तरह मुझे के कभी सुना है इस अल्फाज तरह की बातें बोलते करते हैं, हुए? ये बड़ी नाइंसाफी है। नून साहब बड़ी इसने मुझे पहले नाइंसाफी कहा है। है, इसने मुझे पहले कहा है नहीं जुड़ा। देखे, आप इस तरह से ज्यादती करते हैं, ये बहुत बुरी नून बात है। भाई और ये पहल किसने की है? पहल इसने की है। मैंने अबू बकर भाई को उसी वक्त कहा कि इसने मुझे चूड़ा कहा है, नहीं। इसको मना करें। चले, उन्होंने आपको अगर गलत लफ्ज बोल दिया है तो आप उसके मुकाबले पे कह रहे हैं मैं सही नहीं हूँ। सो व्हाट डू यू मीन? वो ऊपर मेरे इसका नाम की मतलब वजह से यही मुझे आप दे समझ रहे रहा जो था ना क्रिश्चियन है शायद। वो जुड़ा है। नहीं आप नून मुझे भाई सुने, बताइए, बात मैं सुने, जुड़ा मैंने हूँ कि इनको मैं चमार मैंने हूँ। इनको कहा बताइए है, सुने साहब, ठहर जाइए नून भाई, जोसेफ भाई। रुके 2 मिनट रुक जाए आप। नून भाई बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो इनकी किताब के अंदर लिखी है। ये मना करें कि इनको मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने चमोना नहीं कहा। ये हमें हमारी किताब से जो ये बकवास कर रहे हैं, हमें गंदी गालियां दे रहे हैं, वो नाम निकाल के दिखाएं हमारी किताब से। ये देखें, हम तो इनको जोसेफ- इनकी जोसेफ किताब से साहब- चमूना निकाल के दिखाएंगे अखबारों से इनके। जोधा साहब, मिर्जा साहब ने अगर मुझे कहा है तो वो मुझे कहा है, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि मुझे तो इस तरह क्यों से जब भाई आपका जो बार-बार नाम चूड़ा रखा है कहने नहीं, का। मिर्जा साहब ने नहीं कहा। आपने वैसे ये दुरुस्तगी कर ले, मिर्जा साहब ने नहीं कहा आपको। आपने मुझे मिर्जा साहब ने आपको कुत्ती का बच्चा कहा है, मिर्जा साहब ने चमूना नहीं कहा आपको। मुझे अगर मिर्जा साहब ने कुत्ती का बच्चा कहा हुआ है, वैसे तो उन्होंने कहा नहीं। अगर वो ये भी भाई कह के कहा है ना मारेंगे, आपको। तो मैं कहता हूँ मैं ये भी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई शक, वो मेरा वो और तो उनका ठीक है, मामला आप हैं। अब हाँ, वो देखें वो एक मेरा और नीचे उनका आके मामला है। एक बकवास कर रहा है जज्जा, ये मुनाजरे से भागा हुआ है। भाई अगर जजे ऊपर आओ, मिर्जा साहब ऊपर आओ, मैं तुम्हें साबित करता हूँ यस्सुल मसीह को मिर्जा कादियानी खुदा मानता था। ऊपर आओ, ऊपर आओ, मैं तुम्हें साबित करता हूँ कि मिर्जा कादियानी जो था वो यस्सुल मसीह को खुदा मानता था। आओ, तुम तो मुनाजरे से भागे हो। तुम किस मुंह से आए हो यहाँ पे बात मैं करने? जो ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये लुकमान सही, आप तो खुद मुनाजरे से भागे हैं। मैं नहीं बैठा हुआ आपके आप खुद मुनाजरे से भागे हैं। मैं तो, मुझे साल हो गए आपको आप मैसेज खुद करते मुनाजरे हुए। से भागे हैं। मुझे साल से आप ज्यादा लोगों हो ने गया सबने आपको टाइम मैसेज मेरे करते साथ हुए। फिक्स किया, तो मुझे मुनाजरे से कभी और भागे मैं आप। कादरनामे बताओ, कभी और कादरनामे ये बताओ, देखें, कभी ये और क्या लिखा हुआ है कादरनामे सामने? बताओ, कभी और कादरनामे मिर्जा बताओ। गुलाम अहमद है, इसका कभी और कादरनामे अव्वल बताओ इब्तिदा मुझे। चूड़ों से की और तरक्की करते करते आला तबक के आदमी उसके पैरों हो गए। ये सामने किसने लिखा हुआ है। किसने लिखा है? मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पास लैपटॉप खुला हुआ है, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात मैं इधर लिख आपकी देता हूँ, मुस्तनद अभी किताब से निकाल के शायद- दिखाऊं कि मिलिट्री गजट के अंदर ये बात लिखी है, ये फिर मुस्तनद किताबें मैं आप अभी निकालता हूँ, अभी निकालता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये इनकी मुस्तरद नहीं, ये मिर्जा साहब का दाएं और बायां बाजू है अलबदर। हाँ, अलबदर। कुत्ती का बच्चा उसको कह देगा। ये मिर्जा साहब के दाएं और बाएं बाजू हैं अलबदर और अल हकम। का बच्चा कह दो मिर्जा साहब को कुत्ती का बच्चा। मलक इमरान साहब, आपका नेट सही नहीं है, शायद आवाज सही नहीं आ रही। जी साई साहब, ये अल बदर अखबार है, मिर्जा साहब का दायां और बायां बाजू 2 अखबार है, अल हकम और अल बदर। ये अल बदर के अंदर ये लिखा हुआ है। ये मैं आपसे सख्त नाराज हूँ, आपने मेरे साथ ज्यादती की है कि मैं ये देखें, आपने उनको चमूना कहा है और चूड़ा भी कहा है। देख लें, चमूना तो था, आपने चूड़ा भी निकाल के दे दिया। अभी मैं बह रहा हूँ, वो अभी बहुत मैं बह नाराज है, रहा हूँ, आपने मेरी चूड़ा बात सुन निकाल ले। के दे दिया अगर उनको। मलक इमरान साहब, एक जब तक मैं जोसेफ बैठा भाई, था, इसके आने से पहले इसके आने से पहले हम बात कर रहे इनको थे, मिर्जा किसी साहब ने ने कहा है ना कुत्ती का बच्चा, तो ये लुकमान साहिब भाई भी मिर्जा साहब को कुत्ती का बच्चा कह देंगे। आपको क्या भाई तकलीफ है? कान के बदले कान, आंख के बदले आंख, गाल के बदले गाल। बिल्कुल, इसको अगर क्या मिर्जा तकलीफ है? साहब ने इससे इनको पूछें, इससे पूछें। कहा कुत्ती का बच्चा, इसको पूछें, कहो लुकमान इसको भाई, पूछें, लुकमान भाई कहो मिर्जा साहब हम को। यस्सु मसीह के बारे में जो कुछ है हमें कोई इतराज नहीं है। जो भी कोई कहते रहे, हमने कभी इतराज नहीं किया। हमें जो आप कहते हैं हमने पेशाब खाना पीना है ऊंट का, हम कहते हैं पिए आप, हमें कोई इतराज नहीं। हदीस में आया, मैं ये नहीं कह रहा, अगर मिर्जा साहब ने आपको कहा है कुत्ती का बच्चा, तो आप आपके मौलवी आप कहते भी हैं कहो मिर्जा साहब को कुत्ती का बच्चा। सैयद असद आंदा मैं कुत्ता मां, आपकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप कहते रहे हमने कभी नहीं आपको रोका। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मिर्जा साहब ने आपको कहा है कुत्ती का बच्चा, तो आप उसको मिर्जा साहब को कह सकते हैं कुत्ती का बच्चा। उन्होंने कहा, वो शायद आपका नाम क्यों नहीं आगे कहा? लिखा हो, हमें नहीं कहा, हमें नहीं कहा। कतूरे कहा है ना आपको कहा उसने। होगा। नहीं, हमें क्यों हमको कहना? नहीं जो कहा। लोग ईमान लेके हैं उनको क्यों कहना उन्होंने? जो लोग ईमान लेके उसने हैं, कहा उनको अगर कोई मिर्जाई मरता है तो कतूरा यानी कि कुत्ती का बच्चा। अगर तू अगर आपने लुकमान भाई ने अगर आपने कल को मरना है तो आप तो हुए कुत्ती के बच्चे।
तो आप नहीं, वो पहले ही हमें मिर्जा तो साहब को कह दे कुत्ती के बच्चे। हमें नहीं कहा हुआ, आपके उलमा ने खुद अपने आप को मस्जिदों में बैठ के मिंबर हाँ, तो मिर्जा साहब ने तो आपको कहा है ना, मिर्जा साहब ने तो आपको कुरान पढ़ा हुआ है, मिंबर रसूल पे बैठ के कहते हैं ऐसी कुत्ते हैं। ये देखिए मिर्जा साहब ने आपको कहा है कतूरे यानी कुत्ती के बच्चे, तो आप कहो मिर्जा साहब को कुत्ती का बच्चा। एक मिनट